Good evening. My name is Aurora Shweta. I manage Project Maverick at Law Seco. It's an initiative to provide you with great legal content for your CLAT preparations for all your law entrance exams. Through these webinars, we bring to you people who've been through that same preparation and have learned from it, and they're here to share with you. Now, Mr. Pranav Gupta, he's an advocate at Supreme Court India, and he's also a founder of his law office, PG Law Office. Pranav Gupta Law Offices. He would like to share his insights on SLAT, and since the date is out, we thought it would be a great idea to talk about it in in the syllabus, the strategy, the areas to focus on. We'll also talk about solving papers, the past year papers, and also how the life is at SLS. So I think it'll be a great idea to talk about that. And in case you have any questions or queries related to the topic, do feel free to ask our speaker. Thank you. Over to you, Pranav. Please take it forward from here. Okay, thank you so much. Thank you, Shweta. Let me introduce myself again. I'm a Delhi-based lawyer, and I graduated from Symbiosis in 2018 itself. And as far as this SLAT exam is concerned, so let me share very little experience. When I appeared for Symbiosis entrance test, that was initially that used to called SET, Symbiosis entrance test. So after passage of time, curriculum, syllabus, everything got changed. Okay, so when I appeared, then there used to be 150 questions. Okay, and out of that, we used to get 2 hours to solve those particular questions. So initially, like after considering the CLAT syllabus also, कई सारे changes आए हैं इस pattern को लेके. So before we start with the structure and with everything, so let's discuss what is the hierarchy of campuses. Okay, so when you crack SLAT, that's SLAT, okay, Symbiosis Law and Aptitude Test. Okay, so the very first college, the premier college is Symbiosis Pune, SLS Pune. Okay, and then it comes from, like, I'm from Symbiosis Noida, that is in second number. Then Symbiosis Law School Hyderabad, and now the new one, the latest one, Symbiosis Law School Nagpur. Okay, so considering the 2019 19th ranking of the Symbiosis colleges, these are the ranking. First is Pune, second is Hyderabad, second is Noida, sorry, third is Hyderabad, and fourth is Nagpur. So now, what is the current pattern? Let's understand this thing. Okay, I'm sure most of you are aware about this particular thing. So abhi current structure hai, that is LR, that is logical reasoning, that is, it has 18 questions. Okay, and then legal reasoning, again 18 question, analytical reasoning, that's again 18 question. Then there is RC, reading English section, basically. Okay, it has 18 questions again, and then 18 question again for GK. So like looking forward to, there is no A or B plan to proceed to crack any particular examination. Okay, it is totally subjective. Like for example, it is not necessary that Shweta has this attitude of going, like proceeding further with LR section. Somebody looks forward to solve the GK portion. So मेरा ये मानना है, and मेरा एक personal experience that I'm sharing with you all, कि आप first of all you should go for a specific topic जिस पे आप कम से कम time spend कर सकते हो. Okay, that's more important because it's all the game of time. Okay, how you going to manage throughout 90 minutes. Okay, so when I was preparing, that time मेरी GK थोड़ी better थी. Okay, because I used to read a lot of things, so I was quite aware about the like ongoing scenarios. Okay, so GK के लिए, that I would suggest, there are only 18 questions. Okay, so taking this particular factor into consideration, that 18 questions से GK में होता क्या है? It is very simple. Either you know the answer or you don't know. Okay, there is nothing called deductive reasoning over there, that कि नहीं ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, right? So GK में it is like a, you can say कि you have an edge कि आप जल्दी से जल्दी आप उसको solve कर सकते हो.
ठीक है। तो जीके में देयर आर 18 क्वेश्चंस, ओके। सो इन 18 क्वेश्चंस को आप, मैं मानता हूँ कि आप 2 मिनट में भी अगर 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 7 से 8 मिनट में आपको 18 क्वेश्चंस कर लेनी चाहिए, ठीक है। दैट्स मैक्स, ओके। सो स्टैंडर्ड आपको ये लेके चलना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, the more you time save as a, like the more you save time, okay, it is going to be a buffer time for you, okay, to tackle other portions of the exam, okay. So gk में try कि आपको कम से कम टाइम लगे, okay. So वहां पे अगर आप अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको टोटल 5 सेक्शंस को 90 मिनट्स में आप डिवाइड करते हो, ठीक है। तो आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो जीके में अगर आपने 10 मिनट दिए, मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूँ, आपने 7 मिनट से लेके 10 मिनट दिए हैं, तो यू हैव 83 मिनट्स इन योर हैंड, ओके। उन 83 मिनट्स में फिर आपको बाकी 4 सेक्शन डील करने हैं। सो यहाँ पे आपको एक अपर एज मिल जाएगा कि दैट आई हैव सेव टाइम, ओके। सो जीके इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा टाइम मत लगाओ। अगली चीज आती है कि अब इसको अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जीके के बाद हमको आगे टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हर किसी का एक मेंटल गेम होता है चीज़ों को टैकल करने के लिए। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस प्ले पबजी। आई एम नॉट श्योर, लाइक मेजॉरिटी ऑफ पीपल नो अबाउट द पबजी, ओके। पबजी गेम में हम लोग करते क्या है, आई एम ट्राइंग टू रिलेट इट सो दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज यंग एज, ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम। सो होता क्या है कि हम जब जंप करते हैं प्लेन से, ठीक है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है। जहाँ पे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंकर कर सकते हैं, राइट। PUBG just remove this particular thing. For any instance, like for take any example, if you want to tackle something, you always proceed with the stronger part that you have, okay. You go with the strength, okay, कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जीके को आप जब आप 7 से 8 मिनट में आप सॉल्व कर देते हो, तो आपके पास 83 मिनट्स। अब उस 83 मिनट्स में आपको बाकी 4 सेक्शंस को डील करना है। जब मैं यहाँ पे था तो मैं इंग्लिश पोर्शन सबसे लास्ट में करता था। आई यूज्ड टू डू वेरी लास्ट मोमेंट, क्योंकि मेरे लिए क्या होता था कि जैसे मेरे टाइम पे मेरे जितने कलीग थे, मेरे जितने फ्रेंड्स थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, some of them they used to do random solving questions. They sometimes they are in section 1, okay, then they jump to legal reasoning, then they jump to अचानक से आरसी में कहीं वो जीके कर रहे हैं। तो किसी किसी का एक ऐसा लॉजिक होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपने जीके सॉल्व किया। जीके इस वजह से मैं ज्यादा आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जीके एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको आता है या तो नहीं आता है, आपको दिमाग नहीं लगाना होता है वहां पे। इधर यू नो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एल्स यू डोंट नो, ओके, यू कैन नॉट गेस। तो गेसिंग वर्क भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसके बाद जीके के बाद आप कोशिश करो कि आप किसी भी क्वेश्चन पे रुको नहीं। आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो दैट आई एम गोइंग टू फिनिश जीके बिटवीन 8 to 10 मिनट्स, 7 to 8 मिनट्स। उसके बाद मुझे बाकी 83-84 मिनट्स में बाकी चीजें टैकल करनी है। अब उसके हिसाब से आप बात लीजिए कि भाई आपने 20 मिनट, 20 मिनट्स ईच यू हैव गिवन टू ऑल 4 सेक्शंस, ओके। स्टिल यू हैव 10 मिनट्स एज अ बफर, आई एम टेलिंग यू। आफ्टर डिवाइडिंग 20 मिनट्स ईच फॉर 4 सेक्शंस, you still have like 7 to 8 minutes in buffer। वो आप उस पोर्शन को दे सकते हो जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग एज नहीं है, लाइक मेरा आरसी में नहीं था, ठीक है। सो आप वहां पे वो टाइम डिवोट कर सकते हो। अब इसको कैसे आप टाइम फ्रेम में डील कर रहे हो वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, वो प्रैक्टिस से आता है। आपको पास्ट ईयर तभी मैं बोलता है कि टेस्ट पेपर्स आप ज्यादा सॉल्व करोगे, दैट विल मेक यू मोर एक्यूरेट एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू यू नो टू टू अंडरस्टैंड कि आप किस पोर्शन में कितना टाइम ले रहे हो। दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। सो आप प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप आरसी, आप एडिटोरियल पढ़ो। आप वीकली में जो आपके हिंदू न्यूज़पेपर होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया के इतने अच्छे एडिटोरियल्स, गो फॉर दैट। आप उसी से आपका आरसी का पोर्शन स्ट्रांग होगा। सो आपने लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, आपने लीगल रीजनिंग कर लिया। अब फिर आप आते हो आरसी को कैसे डील करें मैम। यू नो श्वेता, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आरसी का पोर्शन क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे लीव,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो पैनिक कर जाते हैं कुछ लोग कि ये यार इतना बड़ा है, 1.5 पेज का है, 2 पेज का है, हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट बिकॉज़ आई हैव जस्ट हैव 10 मिनट्स लेफ्ट एंड आई हैव टू डू 4 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, ओके। सो उसको भी करने का एक लॉजिक है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, माय मेंटर, ही इज वेरी स्मार्ट, मिस्टर नीरज त्रिपाठी, ओके। ही टोल्ड मी कि जब आपको कुछ आरसीज ऐसे होते हैं कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने चाहिए। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, ओके, देन अकॉर्डिंगली हाईलाइट और सी कि आपको उसमें आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये तब आप अप्लाई करो जब आपको कोई भी टाइम नहीं है कि आप आरसी को फुली फोकस होके पढ़ सकते हो। पहला तो यू हैव टू गिव इट शॉट कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अपना टाइम ऐसे मैनेज करो दैट यू कैन टैकल ईच एंड एवरी इशू वेरी कोहेरेंटली एंड वेरी विजिलेंटली, ओके। बट if you see that I do not have that much of time to go through all 2-3 RCs right now and I have just 7 to 8 minutes left, then how you can solve that? Okay, just read the questions first, then accordingly आप उसको आगे प्रोसीड करो। अच्छा, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पार्ट, ओके। व्हाट आई जस्ट केम टू नो दैट अभी यहाँ पे राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होता है जस्ट आफ्टर एस एस हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो? Yeah, Ah, I can hear so you. yeah. So after SLAT, there is writing ability test. Okay. So अब writing ability test में how can you how you want how can you can make yourself effective, okay, better in writing ability test. So अब I'm now I just want to tell you guys कि ये writing ability test basically है किस लिए, okay। ऑनलाइन एग्जाम्स जब आप कर देते हो कहीं पे तो लोगों को ये लगता है कि चीटिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हुआ क्या है कि अब जितने ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं ये पहले भी बहुत टाइम से हो रहे थे फॉरेन कंट्रीज में, इट इज़ वेरी रेगुलर प्रैक्टिस ओवर देयर, ओके। सो ये ऑनलाइन जो एग्जाम्स का जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें भी ना, जब आप सिम्बाइसिस की वेबसाइट में जाओगे तो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस कई सारे प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर कि क्या क्या इशू रहते हैं और वो हाउ दे आर गोइंग टू मॉनिटर। सो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप जैसे ये प्रॉक्टरिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे काम करता है, ओके। सो प्रॉक्टरिंग में मल्टीपल फेसेस अगर आपके आते हैं स्क्रीन में तो वो आपको दे गोइंग टू चेक, ओके। अगर आप अनवांटेड मूवमेंट्स करते हो, कोई या तो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी करते हो या फिर कई बार अपनी जगह से उठ रहे हो आप, ठीक है, दे गोइंग टू मॉनिटर इट वेरी लाइक दे टेक इट वेरी सीरियसली। और आपको कभी कभार लगता है कि नहीं, हम दूसरे ब्राउजर में जाके मैं सर्च कर सकता हूँ आंसर, आई कैन डू लिटिल बिट ऑफ चीटिंग, लाइक कुछ लोगों को ऐसा समझ में आता है। बट आपको ये चीज़ समझ चाहिए, जब वो आपका एग्जाम ले रहे हैं ना तब आपका वो ब्राउजर पूरा सिस्टम एक तरीके से हैक कर लेते हैं, ओके। सो एनी सॉर्ट ऑफ ब्राउजिंग मूवमेंट, एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, दे गोइंग टू रिकॉर्ड इट, ओके। सो इट माइट अफेक्ट योर रिजल्ट ऑल्सो अकॉर्डिंगली। सो अब कमिंग टू राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। अब राइटिंग एबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अब लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, okay। And this is going to be very important for every law aspirant, I am telling you, because in your class 10th 12th or while writing the exam, you like people are not aware about the gravity of the profession, okay। It is totally up, it totally depends ki how you going to use your brain, okay। लॉ पढ़ना, डिग्री लेना is not a big thing, okay, you can do it from anywhere, but how you going to handle your profession, how you going to handle your character as a lawyer, okay, that becomes more important। So जो ये लीगल ये राइटिंग एबिलिटी टेस्ट है, it is just to understand what is your mindset, okay, how you understand and interpret thing, okay, and what is your perception towards a particular issue or like areas of issues, okay। So अभी क्या क्या पॉसिबल ऐसे ऐसे टॉपिक आ सकते हैं राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में। सो अब अभी जस्ट टेकिंग द करंट सिनेरियो इनटू कंसिडरेशन। सो आज के टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर इशू क्या चल रहा है, कोविड-19, ओके। इट कुड बी वन ऑफ द टॉपिक जो आ सकता है। सो अगला टॉपिक ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग, बिकॉज इट इज
a trend right now, okay, and it is something like it is going to be a very important thing for in coming future, coming time period also. So questions pertaining to COVID-19 and how it is affecting economy and also the legal system as well, because we have just transformed our legal system कि हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करें, because आज के टाइम being as a lawyer right now I'm working from home, okay, so it becomes very difficult, okay, to work from home as a lawyer, okay, it is very difficult and it is very new for us also. So they can ask, they might ask you what are your views regarding this upgrade in profession. And mental health, of course, this is the new trending issue right now. They can ask you because it's a very sensitive issue, and what you think about mental health, it is very important right now, so they can ask you this question also. So you should understand कि आज के टाइम ट्रेंडिंग इश्यूज क्या चल रहे हैं pertaining to political, social and legal, okay, आप उन सब पॉइंट्स को सोचो। और प्लस पिछले एक महीने में किस किस टॉपिक्स में एडिटोरियल्स आए हुए हैं, एडिटोरियल क्यों इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप अपने थॉट्स को कैसे सिंक्रोनाइज वे में पोर्ट्रे कर रहे हो। End of the day, you want to be a lawyer, you have to understand, analyze and synchronize your thoughts, then write. तो ये इसीलिए राइटिंग एबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज पे आते हैं कि भाई आप ऐसे को कैसे डील करोगे, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है जो हमें फोकस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको कोई टॉपिक मिलता है, आप इस बात को सोचिए कि आपको कुछ एक बियॉन्ड लेवल आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको बस एक अपना थॉट लिखना है जो एक एज अ लॉयर, एज अ पैशनेट लॉयर आप सोचते हो सोसाइटी के बारे में, उस पर्टिकुलर इशू के बारे में। आप सिर्फ अपना वो थॉट लिखिए, डोंट ट्राई टू बी वेरी क्रिटिकल, बिकॉज इफ यू गोइंग टू बी वेरी हार्श विद द लैंग्वेज, it might affect your result, I'm telling you. So you need to be very polite and try to explain what you understand with the situation, okay, and then write it, because it becomes very important, the way of interpretation, okay, how, see, solving problems, these 5 sections, okay, and you can score like 100 plus, okay, but end of the day, if your brain is not suitable as per the standard of the institution, as per the standard of the profession, then I'm sure they're going to reject on the basis of your written ability test, okay, writing ability test. So it is very important. So ये सारे थे what I believe कि ये possible options हो सकते हैं टॉपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब now लोग जैसे whenever I go to my coaching centers also, जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी, so people ask me कि law school की लाइफ कैसी होती है। when you called me also requested me कि let's share this thing also, that how like after getting admission, what is the reality, okay, and how you have to tackle these issues, okay. So I strongly believe, like people, those who are preparing for it and those who are right now, I'm sure they're going to crack it. But the moment you get admission, okay, you have to understand, you have to be very very coherent with this issue कि आपको करना क्या है। because होता क्या है कि Shweta, I'm sure you must have dealt with this particular issue in your experiences also, कि आपको ना, लोगों को आप जब भी सुनते हो बोलते हैं कि ना लॉ इसलिए करना है क्योंकि पैकेज अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी है। So whenever I talk to them, I always say, law is a practice, okay, it's not a job, okay, and it is all about how you handle things, how you interpret things, and how you manage your position, okay, because end of the day, it is your behavior, it is your understanding, and it is your connection that is going to help you in building your professional life, okay, as a lawyer. This is very much important. Then you need to understand that how you should start developing that profile from the very first day when you enter into law school, okay. So during my law school career, uh, I did 14 internships, okay, in 5 years, okay. So I remember I never got any opportunity to move out and have some gala time with my friends. So I did 14-15 internships during my law school. तो अब होता क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब एक चीज क्या होती है, जब आप लॉ स्कूल में आते हो, यू गेट पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री,
एंड फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ लाइक, आपको एक, आपके साथ एक मिनिस्टर का भी बेटा पढ़ रहा होगा या बेटी पढ़ रही होगी, आपके साथ एक टीचर का भी बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है, then you need to understand, you want to be a lawyer, okay, you don't want to be somebody, correct? So you don't have to get influenced during that particular period. आपको बहुत ही फोकस रहना है कि आपको लॉ स्कूल में अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है। तो पहला जो आपका जब सेमेस्टर ब्रेक होगा दिसंबर के अराउंड, तब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। देन यू हैव टू गो फॉर सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप किसी एनजीओ पे इंटर्नशिप करोगे, दैट इज मोर एडवाइजेबल, बिकॉज उतने टाइम आपने उस समय इतना लॉ पढ़ा नहीं होता है, आपको लॉ की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, आप ज़्यादा ज़्यादा टॉट्स पढ़ रहे होते हो उतने टाइम। इफ़ यू आर हैविंग BBA LLB, then most of the subjects are related to BBA. If you are doing BA LLB, then most of subjects are related with the art side. Okay. So आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर का ब्रेक है, आप उसमें थोड़ा सा रिलैक्स्ड रह सकते हो। You just go for some NGO, understand कि एक NGO काम कैसे करती है, because that's the perfect time to understand how a non-governmental organization works, okay? क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता है काम का, आपने कुछ पहले पढ़ा भी नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर में इतना, तो आपके लिए ये एडवाइजेबल होता है। इवन सारे लॉ स्कूल्स भी यही एडवाइस करते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप काम करो, आप इंटर्नशिप वहाँ पे करो। अगला जब आपका सेमेस्टर ब्रेक होता है, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इस बेसिस में मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आप कोशिश करो, क्योंकि आपने ज़्यादा लॉ सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इनटू मोर राइटिंग रिसर्च पेपर्स, ओके, रीडिंग आर्टिकल्स, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर के एंड तक इतनी लॉ की नॉलेज नहीं होती है, और 90% ऑफ द लॉ स्कूल्स में टॉट्स ही पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा लॉ सब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि आप फर्स्ट ईयर में आप इंटर्नशिप अपना एनजीओज में करो, या फिर उसके बाद अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप रिसर्च पेपर्स पे लिखना फोकस करना शुरू करो। आप इसमें आपका क्या होता है कि आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो टॉपिक्स को लेके, ठीक है। आई हैड लाइक 11 to 12 publications in 5 years, okay, so including online and offline both. सो आप फर्स्ट ईयर से ही मैंने रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया था। तो आप अब रिसर्च पेपर जब आप लिखते हो, देन यू गेट टू नो कि आपको कैसे साइटेशंस डालनी है, कैसे आपको अपना कंटेंट है वो कैसे आपको अपना कंटेंट डालना है, कैसे कंटेंट को आपको हाईलाइट करना है, किस वे में उसको आपको आगे प्रोड्यूस करना है। सो दैट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो doing moot court competitions and writing research paper internships, these are three important things during your law school, okay? सो फर्स्ट ईयर में आप कोशिश करो कि आप एनजीओज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप अपने आप को एंगेज रखो, रिसर्च पेपर में रखो। रिसर्च पेपर का टॉपिक आपका 5 साल तक ही चलेगा, क्योंकि वो अभी तक चलता है, हम सब लोग लिखते हैं। तो आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप ट्रायल कोर्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करो कि आप होता क्या है कि लोग बड़े नाम पे ज़्यादा जाते हैं कि यार मेरा वो फ्रेंड है, ही इज टर्निंग अंडर सम बिग शॉट, इज अ सीनियर एडवोकेट। सेम हैपेंड विद मी आल्सो, लेट मी कन्फेस दिस थिंग आल्सो। सो होता है, आप इन्फ्लुएंस होते हो कि नहीं, आई वांट जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, नहीं आई वांट टू get to, you know, I really want to work under Salman Khurshid, Kapil Sibal and Nariman and everyone like। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये देखना है कि आपको कौन सिखा सकता है काम, ओके। You don't have to do internship just for the sake of certificate, okay? You have to do internship to understand that how I can relate myself with profession, right? आप चीज़ों को कैसे समझोगे? आप जब इंटर्नशिप किसी ऐसे इंसान के पास करोगे जो आपको बता रहा है कि आपको ऐसे काम करना है, कोर्ट में ऐसे काम होता है। These big senior advocates, they are not going to guide you, okay? I'm sure most of them will not even like they never come across your name also कि कोई इंटर्नशिप करता भी है यहाँ पे। सो आपको इंटर्नशिप एक मीडियोकर लेवल की लॉ फर्म या फिर एक मीडियोकर लेवल के प्रैक्टिशनर्स के पास रहना है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक। आप ऐसे अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करोगे। तो उसके बाद जब आप फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में जाओगे, देन यू ट्राई टू अप्रोच टीयर 2 लॉ फर्म्स, टीयर 1 लॉ फर्म्स। तब आप अकॉर्डिंगली उस चीज को समझो कि आप उससे होता क्या है कि आपको अपीलेट कोर्ट की नॉलेज तभी आएगी जब आपको अपीलेट कोर्ट का लॉ सिखाया जाएगा। व्हेन यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद सीआरपीसी, सीपीसी, ठीक है, आईपीसी, देन एंड ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ
doing internship under a senior advocate. Okay, so you should understand this thing कि मुझे 4th year 3rd year तक ना मुझे ट्रायल ही सीखना है, because getting into corporate it is readily available anytime. I'm telling you, 4th year के बाद आप शिफ्ट कर जाओ. If you're not interested in litigation, you can shift to corporate 4th year में, क्योंकि तब आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो उस लेवल के. But 3rd year तक it is my advice that you should restrict your profile to trial court advocates, ताकि आपको वो बेसिक सिखाए. क्योंकि 5 साल के बाद अगर आप किसी से ये पूछोगे कि FIR का सेक्शन क्या होता है, then people will judge you. I'm telling you. So it becomes very important that you should while passing, when you graduate, you should have a basic knowledge about every aspect of law, be it criminal law, civil law, insolvency, Companies Act, anything. You need to have even basic idea कि भाई how you proceed, how you write. You should understand, because जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा जब भैया आप जाओ रिट पिटीशन फाइल करनी है, नहीं. बट you should know कि रिट पिटीशन किस में होती है, how to proceed. आप जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको बेरेक्स पढ़ने की आदत पड़ जाती है. तब आप कम से कम टाइम में बेरेक्स, आपको पता होता है कि मुझे किस पर्टिकुलर प्रोविजन पे को टैकल करना है, किस पर्टिकुलर प्रोविजन पे मुझे पढ़ना है. या हाँ ठीक है, मेरे पास क्या है कि अब सेक्शन 8 की इंसॉल्वेंसी आई हुई है, ठीक है, IBC का एक केस आया हुआ है हमारे पास, एंड आई हैव टू सी कि भाई कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं. तो मैंने लॉ स्कूल में पढ़ा है, इंटर्नशिप के टाइम इंटर्नशिप अगर आपने की होगी देन यू विल हैव अपर हैंड. ओके, अब आप जाओगे, ठीक है, आप ऑपरेशन क्रिएटर हैं तो भाई आप सेक्शन 9 में फाइल कर दोगे जाके, प्री रिक्विजिट इज सेक्शन 8 डिमांड नोटिस. तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा. आपको हमेशा ना जब आप इंटर्नशिप करके निकलते हो तो आपके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आप पहली जॉब के लिए जा रहे होते हो तो आपकी जो पहली जॉब होती है वो आपके इंटर्नशिप और पब्लिकेशन के बेसिस पे ही मिलती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए, क्योंकि कोई लॉयर या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जज ऐसे ही करेगी. दे नेवर कॉल यू लाइक फर्स्ट मीटिंग में. वो पहले आपका सीवी देखेंगे, आपकी सीवी में आपकी इंटर्नशिप्स देखेंगे, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज देखेंगे, आपने किया क्या है, उसके बेसिस में ही दे विल कॉल यू. वो आपको समझने वाली चीज़ है कि आपने इंटर्नशिप्स की हुई है, कहाँ इंटर्नशिप्स की और किस टाइम पे इंटर्नशिप की है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. It is very important that you intern under senior advocate in 4th 5th year. That is understandable, it's very logical. Okay, but doing internship under a senior advocate in the 2nd year 3rd year, it is no point, I'm telling you. So it might give a negative image कि भाई वो फिर तो सिर्फ इंटर्नशिप ही की हुई है. सो आपको ये बहुत सोच समझ के देखना पड़ेगा that how you should build your profile. 5th ईयर और 4th ईयर में अब आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे अब ट्रायल में तो समझ में नहीं आ रहा है. लोगों के दिमाग में होता है कि भाई मैं लिटिगेशन नहीं कर सकता, किसी के दिमाग में ये आता नहीं, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू श्वेता, क्योंकि लोगों के पास ये इशू होता है कि आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, आई डोंट हैव बैकग्राउंड, मेरे पास लॉ बैकग्राउंड नहीं है, आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग ओवर हियर सो आई कैन नॉट डू लिटिगेशन. दिस इज समथिंग लाइक वेरी वीक आर्गुमेंट इन माय आईज. ओके, सो आप उस बैकग्राउंड इशू को आप ऐसे ही टैकल कर सकते हो जब आप लिटिगेशन पे आप फोकस करोगे स्टार्टिंग के 4 साल में. आई एम टेलिंग यू, लिटिगेशन से शिफ्ट करना कॉर्पोरेट में इज वेरी सिंपल, बट कॉर्पोरेट से लिटिगेशन में शिफ्ट आप नहीं कर सकते. इट इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड इफ समबडी डज इट, आई एम टेलिंग ही इज अ गॉड लेवल प्लेयर. ओके, अगर कोई कॉर्पोरेट से लिटिगेशन में शिफ्ट कर जाता है और सक्सेसफुली शिफ्ट करता है, ये बहुत बड़ी बात है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. 3rd ईयर तक मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ट्रायल पे रहने का, कि आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो प्लस ट्रायल में आप अपना ना टाइम वेस्ट नहीं करो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे. जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में IPC CRPC पढ़ते हो तो आप रिलेट कर सकते हो. हाँ, मेरे पास एक ऐसा केस आया था इंटर्नशिप के टाइम. तुम अपने यू कैन गिव योर opinion to your senior, sir, I have studied this is the recent judgment that I came across during my academic life. So आप इसको हम यूज कर सकते हैं. So it will add value to your CV also and to your mental and legal understanding as well. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. तो आप 3rd ईयर तक अपने आप को ट्रायल पर रिस्ट्रिक्ट रखो. 3rd ईयर के बाद फिर आप ये डिसाइड करो कि यार अब मुझे भाई I don't want to get involved in litigation now, I should look for some corporate thing.
तब आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मुझे अब यहाँ पे लीगल लॉ पे ही मतलब लिटिगेशन पे ही रहना है या फिर मुझे कॉर्पोरेट शिफ्ट करना है। एंड 4th ईयर एंड 5th ईयर, लाइक बिटवीन 4th एंड 5th ईयर इज द क्रूशियल टाइम टू डिसाइड कि अब आपको कहाँ जाना है। क्योंकि जब आपके 5th ईयर में जो आपकी 2-3 इंटर्नशिप्स बचती हैं, इवन शायद 4-3 इंटर्नशिप बचती हैं, क्योंकि टाइम पीरियड हमें ज़्यादा मिलता है 5th ईयर में इंटर्नशिप्स करने का, तब आप अपना जो सारा लिटिगेशन का किया हुआ एक्सपीरियंस होता है जो आपका, ठीक है, वो आपको कॉर्पोरेट में काफ़ी ऐड करता है वैल्यू। क्योंकि आप क्या होता है, जब आप लिटिगेशन में जब आप रहते हो तो आप कई लॉयर से भी मिलते हो। जब आप फर्म में इंटर्नशिप करते हो, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑल दोज लाइक 5 to 10 or 20 lawyers, okay, but when you go to court, okay, 3rd ईयर तक आप अपने अपने ऑफिस के लोगों के साथ तो कांटेक्ट में रहते ही रहते हो, प्लस वो भी कई लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, आप कई लोगों से मिलते हो वहां पे, तो आपका ना एक प्रोफेशनल एरिया बढ़ता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। So what I believe ki this is going to be very important, that how you choose to proceed further along, like with your internships, while building your legal profession, while building your CV. So Shweta, this is my small experience that I shared. Thank you so much, Mr. Gupta. It was, I think, if somebody told me this when I was studying, because I, in my, you'll be surprised to know I didn't do internships. I did not give that importance, that much importance, but it was way back. I mean, very, very. I mean, nowadays, children are, smarter, wiser, and they have more opportunities, of course. So in our time, it wasn't. But great guidance for everybody, and also. There are a lot of things that have changed for good. They have a date. They still have time to register. So if there's anybody who hasn't registered so far, can do that as well. And Shweta, and one more thing I want to add up, okay. When we were preparing, of course, you must have faced this particular issue also. कि जब हम preparation कर रहे थे ना, तब हमको ये कोई बताने वाला नहीं था. Okay, लोग ये बताते थे कि just go for symbiosis if you do not get clad, go for Jindal, go for this, but nobody told us कि लॉ स्कूल में आने के बाद और लॉ स्कूल में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हम लॉ स्कूल में अपनी छोटी सी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, और हम प्रोफेशन के बाद क्या एक्सपीरियंस कैसा होता है वो बताया। सो हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आप हमसे ज्यादा बेटर उस चीज को, हमारे जो हमारा, मान लीजिए हमने जो गलतियां भी की हैं, तो हम नहीं चाहते कि वो आप उस गलती को करें, ठीक है। वो मेरा पॉइंट था बताने का कि होता क्या है कि जब आप एक बार लॉ स्कूल में आते हो, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, ओके, कि यू गेट कैरिड अवे, ओके, लाइक 10 people doing this, so I should also do this because it looks cool. But no, it doesn't look cool. End of the 5th year, one thing is very much important, that what you have in hand after 5 years, okay, what you understood in those 5 years, that becomes more important. आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपने 5 सालों में किन बिग शॉट्स के पास काम किया है। आपको उन 4 ही छोटे लोगों ने के पास ही अगर आपने काम किया, उन 4 लोगों ने आपको जो काम सिखाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो माय ओपिनियन, आप 3rd ईयर पे जितना ज्यादा लो प्रोफाइल के साथ काम कर सकते हो, जिनके पास काम अच्छा है, आप उनके पास काम करो। यू शुड वर्क विद दोज पीपल हु हैव मच वर्क एंड हैव लो प्रोफाइल, so that is going to add value to your CV and to your brain also. So that's my whole suggestion, जो मुझे ऐसा लगता है कि if the people going to apply, I'm sure they will do like far better. Correct. It will help them a lot. And today, somehow, maybe because we've had such back-to-back webinars, Pranav, it's a pity that not many people have been able to join. But I hope that people can catch it on YouTube and really benefit from the advice. Like I said, that I did, if only I could get this advice. And when I went to the court for the first time, a lot of people asked me, why do you spend so much time with the clerk? There is so much to learn from that person, because he's a hands-on guy. He knows each and everything, the forms, places. Exactly, rightly said. You cannot learn good law of filing things better than a clerk. I'm telling you. Correct. Nobody They are going so to proficient. teach you, yeah, no one going to teach you कि court fee कितनी लगती है. Nobody is going to teach you कि कहाँ पे filing करनी है, कितनी copies बननी है और कब serve होनी है.
करेक्ट एंड यू आपको बहुत समय लगता है पहुंचने में और समझने में if you do Right. not have anybody to help you. So it is like a senior lawyer will help you with arguments. That Correct. is there. But these people will help you with your practice as to how to start, where to really, you know. So I think people, you know, if you're sitting for the exam, that's very nice. Like he said, that you will be, this session today, the webinar today is going to help you from day one when you enter the college, you Right. know. Right. Right. So Right. it is something that will really go a long way these 5 years, and you will really thank Pranav that okay, somebody told us that this is how you're going to not waste a lot of time. We're not saying don't have fun, this is college, please do enjoy. Yeah. Right. Also remember that there is a very, you know, practical learning and you know, it's something very critical for your future. Do that, very important. If there are any questions for those who are logged in, please feel free to put it in the chat box. I'm sure there's a lot of experience that can really teach you today. Anything about LLM? Hemant Himanshu said LLM as in you want to know. We've done a webinar with somebody with focus on PSUs for LLM. He's really it was a beautiful presentation about Hemant. It was about how to prepare and how to really build your timetable. It was that intricate, and I really enjoyed that PPT very much. So please do catch that on YouTube if you like. However, we'll come with a couple of more on PG as well. And about, okay, same question, Hemant, I think I've answered. I'll just look at the YouTube also, Pranav, if you allow me a moment. Okay, so somebody says very well explained. Thank you so much for this session. So there are a lot of compliments happening, but no questions as such. But any other advice if you had to in 90 minutes or Didi, I think the questions have reduced. Number of questions is 90, na? Now I read it Number, somewhere. yeah, it's sorry, I couldn't hear you. Yeah. Total number of questions are 90, and Yeah. you have 90 minutes of time to solve them. So Achha, so if that's those why who the advice joined in us, RC. so those who joined us late, I'm telling you, first of all, you have to understand what are your important areas. Okay, Hmm. just proceed with that. First of all, you have, why again I emphasize more on solving GK portion first, because GK is something that either you know the answer or you don't know. Okay, so it takes least time in all 5 sections. Okay, so if you're going to solve GK portion in 5 to 10 minutes, for example, not even 10 is more. Okay, so if you're going to solve like 7 to 8 minutes, then you have 30 minutes of buffer time. It is going to like 83 minutes for solving other 4 sections. Okay, so अब बाकी 4 sections को आप कैसे डील करोगे? आप उसमें भी ज्यादा टाइम मत दो किसी चीज को. अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसमें भी क्या, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप कैसे करते हैं? आई एम श्योर योर मेंटोर आल्सो मस्ट हैव टोल्ड यू दिस थिंग कि आप डिडक्टिव एनालिसिस कर सकते हो कि भाई इसमें पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा सही होने की. ठीक है, तो आप डिडक्टिव एनालिसिस के बेसिस पे अपना बाकी पेपर सॉल्व कर सकते हो, बट टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और जिस हिसाब से जो मैंने एनालाइज किया है श्वेता, कि जो स्लैट का करिकुलम है, ओके, ये जितने इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं इन पे भी काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनका भी काफी ज्यादा एप्टीट्यूड और राइटिंग बेस्ड पैटर्न हो गया है. अब आप देखते हो आपका क्लैट भी एक सॉर्ट ऑफ सिमिलर पैटर्न पे ही फॉलो करता है. तो अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो. तो श्वेता, ट्रस्ट मी, आप जब आप 1 साल तक प्रिपरेशन कर रहे होते हो ना, आपको आता बहुत कुछ है, ठीक है, बट उस 90 मिनट में वही शाहरुख खान वाला जो एक डायलॉग होता है कि 90 मिनट है तुम्हारे पास, तो उन 90 मिनट में आप कैसा गेम करते हो, कैसा गेम प्ले रहता है आपका थ्रू आउट 90 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो गो विद योर स्ट्रेंथ. आपका जो बहुत आपको लगता है कि आई एम प्रो इन दीज एरियाज, ओके, गो फॉर देम फर्स्ट. जो आपको सबसे कम आता है आप सबसे लास्ट में उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक नहीं करता है. आपको जो चीज आती है आप उसको कर रहे हो जल्दी, वो भी कम टाइम फ्रेम में, तो आपको आपका ना मोरल बूस्ट करता है उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो नीचे जाते जाते जब आप उस वीक पॉइंट पे पहुंचते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे ये ग्रे एरिया है मेरा, जो मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो उस पर आप ज्यादा टाइम भी दे सकते हो. और अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो उतने टाइम जब आप, क्योंकि जब आप कम टाइम रहेगा तो आप ना अपना कूल लूज नहीं कर पाओगे, आप कामली उसको डील करोगे, क्योंकि आपको पता है ठीक है मैंने इस पोर्शन को 20 मिनट देने थे, बट वहां पे मैंने बहुत ही क्विकली काम किया है, जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था मैंने 5 मिनट बढ़ा लिए. एंड ट्रस्ट मी 5 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Very important. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो. तो गो विद स्ट्रेंथ
और फिर आप उस पॉइंट पे को डील करो जहाँ पे आपको कम आता है। जो हर किसी का एक वीक पॉइंट होता है, मेरा जो मैंने बताया कि वीक पॉइंट था, तो हर किसी का वीक पॉइंट है। तो इसमें तो बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है कि मैथ्स नहीं आती है। तो कभी कभार जिन लोगों को प्रॉब्लम होती कि मुझे थी मैथ्स फोबिया स्टार्टिंग में, तो हाँ किसी इसमें मैथ्स का इतना ज़्यादा रोल है नहीं, तो यू हैव very good option of like you have strong possibility of scoring good marks, and of course Symbiosis is a prestigious name, so तो आपको एडवांटेज रहेगा। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें, अनलाइक क्लैट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। right. The thing is that you just keep, you know, MCQ है, so there's very high possibility of scoring and zero possibility of losing marks there. One more thing Shweta, you should add this thing also again, that जो writing ability test होगा, you need to be very patient, very cool while writing your thoughts, क्योंकि on the basis of your writing ability test they're going to judge your mindset, and even if you scored like much in your SLAT, if you failed in that, okay, then it's going to affect your result, I'm telling you. Then you need to be very you know, very calm and very synchronized with your thoughts, that how you're going to that particular issue while writing that essay. It is very much important, because that's the you can say कि 50% criteria is going to be कि आपको writing ability test में आपका thought process कैसा है, आपको उसके basis में ही आपको judge करेंगे वो लोग। So somebody's asked how to tackle with the PI. Personal interview, right? That's No, right. this is I'm telling you. That's right. So अब जैसे मैं बता रहा हूँ, when I appeared, okay, we used to had this Symbiosis entrance test, then followed by personal interview, GDPI, group discussion and personal interview. तो तब ये था सिनेरियो। लास्ट ईयर भी शायद कुछ चेंज हो गया था, अभी फिर से कुछ चेंज हो गया है अभी चीज को लेके। सो पर्सनल इंटरव्यू में मैं अपना एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे जो इंटरव्यू मुझे ले रहे थे, माय जूरिस्प्रूडेंस टीचर मिस्टर सालिम, ओके, एंड आवर बिजनेस टीचर मिस्टर पुष्प लांबा, they both of them left our college. So अभी क्या था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, and initially they asked me कि और खाने वाने में क्या पसंद है। Initially they try to make you very calm, so that because people get nervous while giving the interview, तो पहले आपको थोड़ा सा काम रखेंगे। अब वहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, जब क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते हो पब्लिक स्पीकिंग को लेके या फिर डिस्कशन को लेके, कि आपके अंदर एक फोबिया सा बैठ जाता है, यार मेरा इंटरव्यू है, ओके, तो आप ना फंबल बहुत ज़्यादा करते हो। आपके थॉट्स तो दिमाग में होते हैं, लेकिन वो आपके जुबान से नहीं निकल रहे होते हैं। सो आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। आपसे वो सवाल पूछेंगे, एंड यू हैव टू फर्स्ट लिसन टू देम प्रॉपर्ली। If they asked you that what is 302, because these are very you know general questions, okay, they're going to ask, तो आपको ना पहले उनका सवाल समझना है। सवाल समझ के आप फिर उनको आप टाइम लीजिए, क्योंकि वहां पे कोई टाइम का इशू नहीं है, ठीक है। आप टाइम लेके अपनी चीजों को, अपने थॉट्स को गैदर करो, देन स्पीक। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आप जितना ज्यादा उनको अपने कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करोगे, the more longer you interview, like आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे अपना इंटरव्यू, आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती हैं आपका पॉजिटिव रिजल्ट लाने की। बिकॉज इफ यू गोइंग टू फिनिश इंटरव्यू लाइक दिस, ओके, इन 2 minutes, then I'm telling you it is going to be very negative, okay. सो आप जितना ज़्यादा अपनी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते हो, आप फिर अब जैसे आपसे फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेते हैं कि भाई आप 302 के बारे में क्या समझते हैं, तो आप तो एक बेयर प्रोविजन आप बता दोगे, दिस द क्लॉज फॉर मर्डर, ऐसा है वैसा है, आप समझाओगे, बट फिर आप उनको अपना एक अंडरस्टैंडिंग, सर आई हैव अ वेरी स्मॉल इनपुट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, सर आई बिलीव कि जो भी आप अपने अपने थॉट्स दे सको, ठीक है। लाइक आप जैसे यूथनेशिया, ओके, अगर आपसे पूछ लें कि व्हाट इज यूथनेशिया, तो आप मर्सी किलिंग मोस्टली बोलेंगे कि नहीं वो मर्सी किलिंग होता है सर, ये आपको समझाओ कि आप उनको समझा दो व्हाट इज यूथनेशिया, फिर आप उनको ही बोलो, सर आई बिलीव इट इज समथिंग लाइक वी मस्ट टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज यूथनेशिया लोग अपने आप को क्यों मारेंगे, लोग अपने आप को बिकॉज उनके वो कुछ, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत, वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक राइट नाउ, ओके, मेंटल हेल्थ को लेके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितना आप उनको यस और नो आंसर देके मत रुको कभी, आप उनको एक ओपन एंडेड आंसर दो, सो दैट आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को हाईलाइट कर रहे हो,
आप क्लोज एंडेड सिर्फ उन पर्टिकुलर चीजों का आंसर दो जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं करना चाहते हो. आई एम टेलिंग यू, इफ यू नो समथिंग देन ट्राई टू ऐड योर व्यूज आल्सो. सर, this is my answer, and I have my personal views on this. Sir, what I believe that we should take mental health very seriously, because most of the people in our society, they take it as a joke. They don't take it seriously. Like people those who suffer with this particular illness, people try to make fun of them or call them like a lunatic person. Okay, so what I believe that it's very sensitive issue, and we should take people very seriously and try to console them, right? Try to be very sympathetic towards them, ताकि वो आपका माइंडसेट समझें. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन engage your interviewer with you. तो आपका जब इंटरव्यू ना आपसे रिलेट करने लगेगा आपके दिमाग से कि हाँ ये ऐसा सोच रहा है, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि वो अगला सवाल क्या पूछने वाला है आपसे. सो आप जितना ज्यादा कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाओगे, आपके लिए वो एक वैल्यू ऐड करेगा उस चीज को लेके. तो ये मेरा मानना है कि आप इंटरव्यू को ही ऐसे टैकल करो. Great. Srishti Juneja says that how to improve reading speed in order to read questions fast and not waste too much time. Well, Srishti, thank you for this particular question. This is something very important. I'm telling you. होता क्या है कि जब we do not get that much of time, like as a lawyer, okay, like same thing happened with me like every day. We reach office around 10 o'clock, and at 10:30 NCLAT, National Company Law Appellate Tribunal, my senior, like he goes there very often, he appears very often. So like at like 9:45 reach office, मुझे फाइल मिलती है, वो बोलते हैं कि प्रणव इसको पढ़ लो, अभी चलना है NCLAT. ठीक है, देन हमें 200, 400, 300 पेज की फाइल होती है. ठीक है, और मेरे पास सिर्फ 25 मिनट होते हैं उसको देखने के लिए कि मैं अपने सीनियर को कैसे असिस्ट करूंगा. ठीक है, इफ इट इज गोइंग टू आस्क मी कि प्रणव वेयर इज द रेजोल्यूशन प्लान, ओके, देयर इज अ particular section of resolution plan, then I should know that this particular page number has a resolution plan. Okay, so I need to be very assistive. Okay, because if I'm appearing in court, if I'm assisting my senior, then I need to have that much of understanding कि कहाँ पे क्या है. Okay, तो इंडेक्स तो होता है, ठीक है, बट वो पर्टिकुलर चीज किस पेज नंबर पे है आपको वो भी देखनी पड़ेगी. तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो? आप रीडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सकते हो जब जो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ना एडिटोरियल पढ़ो विद टाइमर. ओके, या सब इंग्लिश मूवीज जितनी ज्यादा देख सकते हो आप, ठीक है, सब टाइटल्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ट्राई टू, दिस समथिंग वेरी फनी, बट आप जैसे कोई स्पेनिश मूवी देख रहे हो या किसी और लैंग्वेज की मूवी देख रहे हो तो उसमें सब टाइटल्स काफी जल्दी चलते हैं. दिस इज काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेटिव दैट आई एम टेलिंग यू, बट एडिटोरियल इज द बेस्ट वे टू प्रोसीड विद. ओके, एंड ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज मोर, क्योंकि आपकी ना जो समझने की और पढ़ने की स्किल होती है ना, वो आप इंक्रीज हो जाती है बाय टाइम. तो एडिटोरियल एंड इंग्लिश मूवीज एंड ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल लोग ज्यादा देखते हैं. So that's how you can increase. Great, great. Very good advice. I really like the idea when it's in a foreign language. You're tempted to read because there is no other way to understand what's happening. So I think that is much better than English, I would say. Great answer. There is somebody who says static GK is comparatively easier to remember than current affairs. It requires a bit more practice as per my own experience, says Anubhav. Thank you for sharing. For this, I have my own opinion on this. कि you cannot predict कि आप GK आपकी कैसी आने वाली है. You need to be prepared fully. Okay, it's not like कि आपको पता है कि static GK 10% आएगी, 50% आएगी या 70% आएगी. ठीक है, for me, अगर आप prepare कर रहे हो, if you're preparing for some competitive exam, of course you need to be very pro कि आपके टाइम GK में आपके करंट अफेयर्स क्या है. ओके, और अकॉर्डिंगली आपका जो एक बेसिक जीके रहता है चीज़ों को लेके, बीट ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और यू कैन से ओलंपिक्स, आप गेम्स में, अवार्ड्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, लॉ में फॉर दैट मैटर क्या चल रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही. करंट में आपका क्या इम्पोर्टेंट है, वो एक सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में. क्योंकि आप जब आप करंट चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑफकोर्स करंट अफेयर्स का ही मेजर पोर्शन रहता है उस चीज़ को लेके. सो हर एक पोर्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक एरिया इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ एज होल. ओके, नॉट बी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर टॉपिक.
Correct. So, ek do questions I'll take from YouTube also. Manthan Dixit says a very well made point on working with low profile lawyers to having a lot of work. Yeah, so that's very good that somebody who took the time to put it on YouTube, because if somebody is not able to watch for any reason, can at least take the pointers. I really like that. Thank you, Manthan Dixit, for doing that. Sonakshi Shirvani says that in interview, if we don't know answer of a particular question, what should we do at that time? Very good question. There are some Right, times. I have answer to this, because आप क्या करोगे जब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, if it is related to law, okay, it happened with me in 2 questions, okay, they asked me कि custom क्या होता है, okay, I answered it, I don't know whether it was true, right or wrong, I answered it, कहते हैं tradition क्या होता है, okay, and I said okay, ये थोड़ा सा महंगा पड़ गया मुझे पिछला वाला, मेरे पिछले वाले आंसर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के थोड़ा नया बना के मैंने फिर बोलते हैं अगला उनका क्वेश्चन था, वो मेरा काफी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दिया, कहते हैं आप कल्चर बताओ, कल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक टॉपिक इन ज्यूरिस्प्रूडेंस वेयर देयर इज अ डिफरेंस, they tell you the difference between custom, tradition and culture, okay, after passing class 12 of course you do not have idea कि आप कस्टम, ट्रेडिशन और कल्चर में एक ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट पे आपको डेफिनेशन पता होगी, ठीक है। तो आप ना जब आपको कोई आंसर नहीं पता है, आप सिंपली बोलो सर आई डू नॉट हैव लाइक आई डोंट नो हाउ टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट आई हैव लाइक, अगर आपको लगता है कि आपको, देखो 2 चीजें हैं, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, लेकिन एक पोर्शन निकल के आता है कि हाँ मैं कुछ बोल जरूर सकता हूँ या बोल जरूर सकती हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आपको नहीं पता है, आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा ना एक चांस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ कुछ बोल के, क्योंकि मैं खाली तो नहीं जाने दूंगी इस सवाल को, या खाली तो नहीं जाने दूंगा इस पर्टिकुलर आंसर को, क्वेश्चन को। तो आप अपना पॉइंट रखो, अगर आप श्योर नहीं हो अपने आंसर को लेके तो ही ये ट्रिक अपनाना, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो ऑफ कोर्स यू शुड गिव योर 100% व्हाइल आंसरिंग इट। अगर आपको 50% या 20% भी आंसर पता है तो डोंट लूज होप, आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू गिव योर फ्रैक्चर्ड आंसर बट गिव योर आंसर, बिकॉज उनको ये लगेगा दैट यू आर ट्राइंग, ओके, you have little bit idea and you trying to formulate your opinion, you trying to formulate, synchronize your thought and you trying to answer this particular query, okay, that gives a very positive impression like of your mentality and of your image also, right, कि आप कैसे चीजों को समझते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप वाला है, डोंट argue with them. I'm telling this something very important that I did. Don't argue with them. They know much better than you. They understand better than you. They know that you're giving wrong answer, but still they are giving you time to explain yourself. You should take it as an opportunity. Okay. अगर आपको आंसर नहीं आता है, smile, tell them, sir, I have no idea about this particular question. However, I have अब आप देखिए क्या है कि अब आप दरवाजे कैसे खोलते हो चीजों के लिए। अब आपको आंसर नहीं पता है, आपको लग रहा है कि भाई मेरा इंटरव्यू अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। सो अब आपसे पूछ लिया कि भाई आप ये बताइए कि आपने ना फॉर एग्जांपल भाई रिट कितनी तरीके की होती है, नहीं पता सर। अब आप तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठ सकते हो वहाँ, तो आप ये बोलोगे सर सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर, बट however I would like to tell you that I have my interest in this particular area and I would love to answer if you ask me questions from this particular area। आप पूछेंगे क्या क्या है आपका, तो आप अपना ना वो स्ट्रॉन्ग एरियाज उनको बता दो वहीं पे, ठीक है। तो आपके सवालों, आई एम श्योर, क्योंकि 100% ऐसे ही होता है, 90% तो होता ही होता है कि वो आपके सवाल उसी से ही पूछेंगे जहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, बिकॉज आप वो आपसे जितना बात करेंगे तभी वो आपका थॉट प्रोसेस समझेंगे। Interview is not about yes, no, or very good, okay, interview is all about how you present yourself, that is more important, and how the maximum you share, be it bad, wrong, false, true, doesn't matter, the maximum you talk, maximum you engage yourself with their presence, that's going to benefit you, I'm telling you। so अगर आंसर नहीं भी आता तो ट्राई करो कि उनका फोकस शिफ्ट करो आप। as a lawyer I'm telling you, whenever we argue in the court, okay, and judge पूछता कि भाई आपकी पार्टी ऐसी थी या ऐसा क्यों, तो हम लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, ठीक है। लाइक मोस्ट ऑफ अस की भाई मेरे को आज मुझे आज भेज दिया मेरे सीनियर ने, Pranav, you have to take adjournment because I'm not feeling well, I'm not prepared for the argument, okay, so what you have to do, you have to take an adjournment। Now I said sir, it's very like it's next week also, today is like final argument, how can you take adjournment for today?
just take adjournment any. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ पे जाके ना इतना कॉन्फिडेंस में जाके, इतना कॉन्फिडेंट होके वहाँ पे मुझे बोलना है कि सर, this is my lord, this is the problem with my senior, and he's facing this issue right now. So he's on, for example, he's on his legs in Supreme Court. This is the best argument that you can make in tribunals and lower court. I'm telling you that my senior is on his legs in Supreme Court. He's engaged in other matter. He's doing some other matter right now. He's engaged or he's not well. तो अब वो एक चीजें होती, तो you cannot be blank over there. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको आंसर सब कुछ करना है, ये प्रायोरिटी है आपकी. ठीक है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो आप जरूर बोलो वहाँ पे, और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या है, तो वहाँ पे आपको ना दरवाजे खोलने पड़ेंगे दूसरे टॉपिक के लिए, क्योंकि आपको ज्यादा इंगेज रखना है अपने आप को इंटरव्यूअर्स के साथ. तो आप जब उनका अपना इंटरेस्टिंग एरिया उनको बताओगे, आप उनका अपना बताओगे कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट है, तो तब वो आपसे सवाल पूछेंगे. आपसे ये नहीं बोलेंगे ठीक है आप जाओ. ठीक है, तब आपसे 1-2 सवाल पूछेंगे शायद, और वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है स्कोर करने की. So this is my suggestion. Very nice, very good. So Nakshi, I hope that answers your question. Also, because I think 12th se ja rahe ho, so they don't expect you to always know all the answers. They expect that kahin pe atak sakte ho, but like Pranav said that they're checking you on lot of other criteria, your presence, your presentation, how you engage, and it's also not a bad idea to admit when you don't know something rather than beating about the bush, because that also leaves a very bad impression. So you say, sir, if you don't know something that he's like, I really liked the answer, I didn't expect that answer. It happens to all of us कि 4 में से एक आध चीज नहीं भी आती है, so don't feel bad about it. Just say, sir, thank you. I will just first thing, I don't know if that's a correct thing to say, Pranav. If I were Sonakshi, I would go and say that thank you for asking me that question. That gives me an opportunity to go home and read, because this I am afraid I don't know. Know that you have this curiosity now, that you will definitely, and there are people who actually take an email ID and say, sir, can I get back to you on this? There are times that people show their inclination towards working towards it. It's something like sab apne level pe handle karte hain situations. But I think we can wrap this up. I do not see any more questions. I think we've handled all, and so thank you. Sonakshi says, thank you, never give up. That's right, Sonakshi. And never feel bad about not knowing something. It's an opportunity to learn every day. I will leave you this with so this is for Sonakshi. When I went to the court for the first time, so my boss, my senior, he said, वकील की पढ़ाई सारी उम्र चलती है. Correct. It's never going to end. So you think that you will pass out of college, it ends there. It starts. I'll add one more thing. My friend, okay, his dad and his grandfather both were high court judges, okay. So उनके दादा कहा करते थे कि वकालत एक ऐसी चीज है कि आपको रोज खोदना है, रोज पानी पीना है. Yeah. तो वकालत is something like कुआं, and you have to dig every day to fetch water, okay. So this is something like it might sound very funny, but it has very deep meaning. It's reality for lawyers. It is not going to end just because you cleared your SLAT today, or just because you cleared your college today. It starts from there. The journey begins, and I think forever. Every new case you have to study. There is no. You are always a learner. You are always learning. Yeah, great. Thank you. Great session, Pranav. A lot of valuable insights. We will invite you, I think, for another webinar if, which is also related to the law field and not for preparation. Let's see how it goes. Thank you, everyone, for joining. Please put in your feedback if you like. We really enjoy taking feedback. And if there's anything you would like to, specifically for us to cover in terms of preparation, put that in the chat box as well. And so there is nothing on YouTube now. Thank you so much. Bye-bye. My pleasure. Thank you. Thank you.